قومی سلامتی پر ISI چیف کی ملکی سیاسی قیادت کو بریفنگ۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے شرکاء کو بتایا پاکستان نے افغان عمل میں مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور طالبان مذاکرات کی میز پر آئے۔ پاکستان افغان امن کے لیے ذمہ دارانہ کردار جاری رکھے گا۔ افغانستان میں عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان کی سرزمین افغانستان میں جاری تنازع میں استعمال نہیں ہو رہی۔ سیاسی اور پارلیمانی قیادت کا بریفنگ پر اطمینان کا اظہار۔ اعلامیے کے مطابق بریفنگ میں سوال اور جواب کا سیشن بھی رہا۔ اراکین نے سفارشات پیش کی۔ اجلاس میں چیئرمین سینیٹ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر داخلہ شیخ رشید شریف، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو، یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر پارلیمانی رہنما اور چاروں وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DG ISPR بھی موجود تھے۔ کیمرہ میں میں تو ویسے تو سر آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن سر جنرل باجوہ صاحب نے بھی کوئی جواب دیے آپ لوگوں کے سوال؟ آرمی چیف نے بھی ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اجلاس سے باہر آ کر میڈیا کو بتایا ان کیمرہ بریفنگ سے مطمئن ہیں، تفصیلات نہیں بتا سکتا، بہت سے مسائل سے آگاہ کیا گیا، موجودہ صورتحال پر بریفنگ جامع اور اطمینان بخش ہے۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا موجودہ حالات میں قومی اتفاق رائے نہایت ضروری ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم کی غیر موجودگی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا وزیر اعظم کی کرسی خالی رہی، بریفنگ کا اہتمام اپوزیشن کے مطالبے پر ہوا۔ صحافی نے سوال کیا سپہ سالار سے مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا؟ جواب دیا نہیں، وہ بہت دور تھے۔ کیا گیا تھا کہ جو ڈیفنس کمیٹی اور سیکورٹی کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو بلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو لیڈرز جو ہیں ان کو موقع دیا گیا تھا پارٹیز کو کہ وہ خود اپنا جو ہے وہ سیکشن کریں۔ وزیر اعظم قومی سلامتی اجلاس میں کیوں نہیں آئے؟ وفاقی وزیر اطلاعات فواز چودھری نے بتا دیا، کہا طے ہوا تھا کہ اجلاس میں دفاع اور سلامتی کمیٹی کے اراکین شرکت کریں گے، پارٹی لیڈران کو موقع دیا گیا کہ وہ خود سلیکشن کریں۔ جو فوڈ سیکورٹی ہے یہ اصل میں نیشنل سیکورٹی، دودھ ہمیں خالص نہیں مل رہا، میں نے چیک کروایا، زیادہ تر جو دودھ بیچا جا رہا ہے وہ دودھ ہی نہیں ہے، واشنگ مشین میں دودھ بن رہا تھا، یوریا ڈالا جا رہا تھا، سختی کی تو دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی۔ فوڈ سیکورٹی اصل میں نیشنل سیکورٹی ہے۔ پاکستان کو فوڈ سیکورٹی کے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کا نیشنل کسان کنونشن سے خطاب، کہا میں نے چیک کروایا ہے دودھ خالص نہیں مل رہا، جو دودھ بیچا جا رہا ہے وہ دودھ ہی نہیں، دودھ واشنگ مشین میں تیار کیا جا رہا ہے، یوریا ڈالا جاتا ہے، ہم نے سختی کی تو دودھ کی قیمت بڑھا دی گئی۔ وزیر اعظم نے بتایا زراعت کو CPEC میں شامل کر دیا، کسان کو ریسرچ کر کے بتائیں گے کہاں کیا اگایا جائے۔ ہمارے کسان پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، قوم کی غذا پوری نہ کرنے والے سزا کے مستحق ہیں۔ نیول مشقوں C-20 میں بطور مبصر شرکت کا ہرگز مطلب نہیں کہ اسرائیل پر پالیسی تبدیل ہو گئی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیل کے ساتھ مشترکہ نیوی مشقوں میں شرکت پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، ڈرون سے متعلق بھارتی بیانات کو بے بنیاد قرار دے دیا، کہا ایسے بیانات سے خطے کے امن کو نقصان پہنچے گا۔ وہاں کا نیوز پیپر کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا قریبی دوست، عمران خان کا وہ اسپیشل اسسٹنٹ اگر یہ دوسرے ممالک سے گئے ہیں اس ممالک سے یہ انفارمیشن لیا جا سکتا ہے۔ زلفی بخاری نے بلاول کو 100 ملین پاؤنڈ ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا۔ وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی نے ٹویٹر پر شیئر کیے گئے ہرجانے کے نوٹس میں بلاول بھٹو سے اپنے بیان پر 14 دن میں معافی مانگنے اور آئندہ اس طرح کی بیان بازی سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا۔ بلاول نے زلفی بخاری کے مبینہ اسرائیل کے دورے سے متعلق بیان دیا تھا۔ زلفی بخاری نے ٹویٹ میں کہا ناسمجھی کے باعث بلاول وہ سب بول جاتے ہیں جو انہیں بتایا جائے۔ It's not going to happen that if Pakistan is
if there's pressure put on Pakistan to change its relationship, downgrade its relationship with China, it won't happen because the relationship between Pakistan and China is very deep. चीन से ताल्लुकात कम करने के लिए दबाव डाला गया तो नहीं मानेंगे। अमेरिका और मगरबी ताकतों का पाकिस्तान को किसी की साइड लेने पर मजबूर करना दुरुस्त नहीं। जितना दबाव आए चीन से ताल्लुकात खत्म होंगे, ना ही तब्दील। वजीर आजम ने दो टोक बता दिया। चीनी मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने कहा, संज्ञान में जो कुछ हो रहा है उस पर मगरबी नहीं चीनी मौक़िफ़ दुरुस्त मानते हैं। मकबूजा कश्मीर पर मगरबी मीडिया की खामोशी मुनाफिकाना तर्ज अमल है। सी-पैक ने मुस्तकबिल की इक्तिसादी तरक्की की उम्मीद और मौका दिया। अगले हफ्ते गवादर जा रहा हूं, जहां मंसूबों की रफ्तार का जायजा लूंगा। अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान होगा। हर सूरत अफगानिस्तान का सियासी हल चाहते हैं। अस्करी हल की कोशिश अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है। सरतंगे सियासत जिसकी बुनियाद अल्ताफ हुसैन ने डाली थी, ये आज भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। खुदा के लिए MQM की सियासत को मुस्तरद करें, इसकी मजम्मत करें, इस पर आवाज उठाएं, लोगों को शऊर पैदा करें, लोगों में शऊर दें। MQM को कराची का अमन बर्दाश्त नहीं। एक बार फिर उर्दू बोलने वालों को सिंधियों से लड़ाना चाहते हैं। सईद गनी का इल्जाम, अमन के लिए MQM के खिलाफ मुहिम चलाना होगी। नैब को गैर जानिबदारी दिखानी है तो हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, MQM ही हाउस को डिस्टर्ब कर रही है। किसी को सिंध असेंबली आने से नहीं रोका गया। चारपाई लेकर ऐवान आए तो रोका। ये ढोल बैंड बाजा लेकर असेंबली आना चाहते थे। पीपल्स पार्टी एहतजाजी सियासत से घबरा गई। पीपी याद रखे, कराची वाले अपना हक लेना जानते हैं। शहरी हुकूक पीपल्स पार्टी के हल्फ में हाथ डालकर निकालेंगे। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार का रद्द अमल, कहा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। सिंध के वसाइल पर काबिज वडेरों के दिन गिने जा चुके हैं। सिंध असेंबली को मजीद वडेरे की औताफ नहीं रहने देंगे। कराची जाग चुका है, अब सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम तहरीक इंसाफ में शामिल। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम की वजीर आजम इमरान खान से PM हाउस में मुलाकात। अरबाब गुलाम रहीम ने कहा, तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने करप्शन के खिलाफ अलम बुलंद किया। आइंदा आम इंतखाबात में PTI को सिंध में कामयाबी दिलाने की कोशिश करेंगे। एजाज लाखरानी की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम पर हमला। DG नैब सखर ने सिंध पुलिस के अदम ताउन से चेयरमैन नैब को आगाह कर दिया। SSP जैकबाबाद पर एजाज लाखरानी की मदद का इल्जाम भी लगा दिया। इंदराज मुकदमा के लिए एहतसाब अदालत से रुजू का फैसला। सेनेटर उस्मान काकड़ की मौत, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम। महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2 रुकनी कमीशन की सरबराही हाईकोर्ट के सीनियर जज नईम अख्तर अफगान करेंगे। जस्टिस नजीर अहमद लांगू कमीशन के रुकन होंगे। कमीशन 30 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगा। हमारे स्कूल्स ने बड़े मुश्किल हालात में हमारी कम्युनिटी के बच्चों को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। जो क्लेम कर रहे हैं कि जी उनकी इनकम कोविड की वजह से कम हो गई थी, इसलिए वो फीसें नहीं दे सक रहे, तो हमने इंडिविजुअल केसेस को रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करना शुरू किया। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर का पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ फेसबुक सेशन। बिलाल अकबर का कहना था, स्कूल फीस ना दे सकने वाले कम तनख्वाहदार अफराद को भी रिलीफ देंगे। बेरोजगार अफराद कम्युनिटी वेलफेयर अताशी की वेबसाइट पर दरख्वास्तें दें। उम्मीद है कि हज के फौरी बाद चीनी वैक्सीन मंजूर हो जाएगी। वैक्सीन के लिए पैसों का मुतालबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। PIA की फ्लाइट 1 हफ्ते से 1 माह तक बहाल कर दी जाएंगी। वहदत कॉलोनी लाहौर में बरतानिया पलट लड़की से मुबैना ज्यादती का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। गिरफ्तार मुलजिम फैजान ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पुलिस को बताया लड़की को नशा करने से रोकता था, जिस पर लड़की ने झूठा इल्जाम लगाया। पुलिस का कहना है लड़की ने कचहरी में बयान रिकॉर्ड कराने से माजरत कर ली। FIR के लिए लड़की की जानिब से दिया गया शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन नंबर गलत निकले। मुतासरा लड़की ज्यादती की तस्दीक के लिए मेडिकल भी नहीं करवाना चाहती। किसी ने बुखार का फोन तो बुखार थोड़ी बच्ची ने फिर फोन किया, बच्ची फौत हो गई।
कहते उसके मौके पे बच्चे पक्के न रखा देते हैं। फैसलाबाद की अयूब कॉलोनी में 15 साल घरेलू मुलाजिमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। सायरा की मां का मालिकन पर तशद्दुद का इल्जाम, कहा मालिकन अलीजा ने बुखार से सायरा की मौत का ड्रामा रचाया। हम घर पहुंचे तो सायरा की फंदा लगी लाश मिली। रावलपिंडी में खातून टीचर से पर्स छीनने वाले मुलजिम का अदालत में एतराफ जुर्म। अदालत ने मुलजिम को 1 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। कराची में नाले पर बनी जुबली मार्केट बैठ गई। 11 दुकानें नाले के अतराफ बनी हुई थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने जुबली मार्केट को सील कर दिया। पेट्रोल का महंगाई का बम गिराया है। पेट्रोल आपने कहा था कम होगा, रेट ये बढ़ गया। हुकूमत से चाहिए पेट्रोल थोड़ा सस्ता करे, गरीबों का ख्याल करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 2 रुपए महंगा। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 44 पैसे। लाइट डीजल 3 रुपए 72 पैसे बढ़ गया। ओगरा ने जुलाई के लिए एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया। फी किलो 18 रुपए 83 पैसे बढ़ा दिए। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 222 रुपए महंगा। बिजली का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट तक पहुंच गया। बड़े शहरों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। देहात में 10-10 घंटे बिजली की आंख मतोली। अवाम बिलबिला उठे। आज हम एच ब्लॉक में गए थे ना, हर वाले से टेस्ट ले रहे हैं। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने जो है हमें बाइज्जत रोजगार फराहम किया। डेरा गाजी खान में टैक्स वसूली के लिए ख्वाजा सरा भर्ती कर दिए गए। डायरेक्टर एक्साइज ने ख्वाजा सराओं को रिकवरी पर लगा दिया। घर घर जाकर टैक्स वसूल और नोटिस दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में मुफाहमती अमन और तनाज़ कश्मीर पर भी तफसीली बातचीत। सरबराह पाक फजाइया का फजाई मश्क अनातोलियन ईगल 2021 का मुआयना। एयर क्रू की तैयारियों और पेशावराना महारतों को सराहा। कहा मश्कें दोस्त ममालिक की अफवाज में हम आहंगी और ताउन के लिए मुअस्सर साबित होती हैं। मश्क में तुर्की, आजरबाईजान और कतर की अफवाज ने शिरकत की। दिमाग खराब हो गया शावेद का। अरे लावारिस समझ रखा है उसने हमारी बेटी को, तमाशा बना रखा है उसने। और तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया कि वो औरत उस घर में रह रही है? मैं अभी जाकर पूछता हूँ शावेद से। मारूफ अदाकार अनवर इकबाल कराची में इंतकाल कर गए। अनवर इकबाल ने उर्दू और सिंधी जुबान के कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। ड्रामा सीरियल शमा के डायलॉग, नाना की जान कमरू ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। अदाकारी के अलावा अनवर इकबाल निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते भी रहे। कहा जाता है कि आपने ज्वाइन नहीं किया तो मुझे फौरन वो कहते हैं आगे से कि आप इंग्लैंड टूर पे नहीं जा सकते। और साथ में वो ये कहते हैं कि आपको याद है कि मोहम्मद हफीज के साथ पिछले दिनों हमने क्या किया। मैंने उनसे कहा कि भाई सबसे पहले तो मैं मोहम्मद हफीज नहीं हूँ। तो ये एक ऐसी बात थी जो कि मुझे हिट की है। सर्जरी के बायस बायो सिक्योर बबल ज्वाइन नहीं कर सका। पीसीबी से कॉल आई कि आप नहीं आएंगे तो जैसे हफीज के साथ किया वैसा आपके साथ भी हो सकता है। मैंने कहा मैं मोहम्मद हफीज नहीं, इस्तीफा उसी कॉल की वजह से दिया। साबिक कौमी कप्तान यूनुस खान के 11th आवर में इंकिशाफात। बोले मेरी कप्तानी के खिलाफ बगावत के मास्टरमाइंड शाहिद आफरीदी हो सकते हैं। 2009 में मुझे हटाने के लिए खिलाड़ियों से कुरान पाक पर हलफ लिया गया। शायकीन स्टेडियम आएंगे, खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगे। एजिप्टन के बाद लॉर्ड्स में भी तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे वनडे में 100% तमाशाई स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। भारत में भूतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरात में एक शख्स ने 2 भूतों पर जान से मारने और खेतों में काम की इजाजत न देने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मालूम किया तो पता चला मुद्दई का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं। लॉस एंजलिस में आतिशबाजी के सामान से भरी गाड़ी में धमाका, गाड़ी के परखचे उड़ गए। हादसे में 17 अफराद जख्मी, आसपास की गाड़ियां भी तबाह हो गई। पुलिस एक घर से पकड़े गए आतिशबाजी के जखीरे को महफूज मकाम पर ले जा रही थी। अचानक वैन धमाके से फट गई। पुलिस ने आतिशबाजी का सामान रखने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। चोर निकले थे रातों रात माला माल होने, लेकिन पड़ गए जान के लाले। 2016 की हॉलीवुड सुपरहिट फिल्म डोंट ब्रीथ के सीक्वल का ट्रेलर रिलीज। बहादुर नाबीना शख्स कैसे अपनी जहानत से मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाएगा, कहानी से पर्दा 13 अगस्त को उठेगा। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं महमूद नदीम। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलें ब्रेक के बाद।